ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति एक उत्पादन आमंत्रित करता हूँ कि मंचासीन जो स्वागत विद्यालयों, महाविद्यालयों और आम जनता और आज इसी के साथ ही हम भी विद्यार्थियों के साथ हम इस कार्यक्रम के साथ चीज़ों से आप काफ़ी
तो आप लोगों को पता नहीं काफ़ी दूर हो, और ये पूरे समाज को बहुत स्पीड से बहुत तेज़ी से खराब करता है। इसमें समाज में नशा चाहे कौन सा भी हो, पाउच, गुटखा, तंबाकू, एल्कोहल, ड्रग्स, कोकेन, एडिक्टिव ड्रग, मतलब समाज इतना अपना आगे बढ़ चुका है इन चीज़ों में कि वो बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग की भी ऐसी ये जो माहौल मिलता है ना अपने को कॉलेज से मिलता है, क्योंकि जहाँ पे कॉलेज में एक ऐसा हम यहाँ से छोटी सिटी से मेट्रो सिटी में जाते हैं, वहाँ पे हमें ऐसा माहौल मिलता है कि जहाँ पे हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि अपने आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बना है कि वहाँ पे हॉस्टल में चीज़ें चल रही है, बाहर फ्रेंड सर्कल में चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने खुद को स्वयं को इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा। Giving women equal voice, but it is also about recognizing their inherent strength, potential, and right to participate equally with men. We all know that men are given supreme position in our society, but we also should focus on women empowerment. Let me tell you one thing, that women empowerment is a very holistic approach which includes providing women equal voice in the society, also celebrating women's achievement. But today we are going to discuss a major issue that comes under women empowerment, and that is women harassment. We all know that women are being harassed in our society at a very extreme level. Emergency case. You should phone center. What were your duties? Okay, bye. The operation get done and Janwa runs for their duty. After duty, Momita is calling Moksha. Hey Moksha, where are you? Hey, I am in the hospital corridor. Hey, come to my office. After that, we will go to the canteen and now some for some rest. Okay, I am coming. You just stay in the OT. We will go together. Okay, now fast. Hey Moksha, are you here? Let's go to the canteen first. Yes, Nancy. Listen, I am not very good at listening to you. Okay, bye. Take care. Please don't switch off your phone. Okay, bye. You can be with me. Okay, I should take a nap now. I am tired. Moksha went to the hostel and Momita is resting in the nurse and then the rapist entered. Oh my God, who is sleeping? Momita! Hey Momita, what are you doing? Hey Momita! Hey Momita, what are you doing? Can you listen to me? Momita doesn't pay attention to the rapist and ignore him because she was caught with the rapist many times. Hey Momita, listen! Hey, don't disturb me. I'm sleeping. I just come back from 3 hours shift. You don't know how difficult is it? You want to sleep? Yeah, I want to sleep. You really want to sleep? Yeah. Now, I will put you to sleep forever. Hey, save me. The rapist started harassing Sonakshi and then kills her. Then Sonakshi's dead body was taken for the postmortem. In the rapist, then Moksha falls asleep by the light and Momita is loving Moksha's mind. Then Momita tells her that I want justice, justice, justice. It was not my fault, Mosha. If I don't get justice, my soul will never find me. You forever live in my heart. Moksha has come to Momita's mother, Mrs. Nehra. My mom, please don't cry. So now she can tonight if she wants justice. I will raise my voice for her. So give it up. I pray to God that one mother get justice. So now we will guide all some steps that we can follow as a girl to save ourselves from such bad people. These steps are: first step, Are you? Hey, what such a beautiful girl? Hey, what are you doing?
are some of the steps that a girl should know. At least some basic steps you should know. So if any of these numbers are there to help women feel violence and harassment. As a person, as a general instruction, you all should know these numbers. Because if you know these numbers, you can save anyone's life who is in need. 181 is the women helpline toll-free number which is available 24/7 and it's a national women helpline number. As a girl or even as a boy, you all should know these numbers so that you can help someone in need. Please come and get them. आपके स्कूल में मुझे बुलाया गया है, बहुत सौभाग्य मेरे लिए। मैं जिला चिकित्सालय से आया हूँ, डॉक्टर अरुण भट्टनागर। मैं जिला चिकित्सालय में मानसिक रोग देखता हूँ। मैं भी स्कूल में पढ़ चुका हूँ, छात्र रह चुका हूँ। 2007 में मैं यहाँ पे 10th का स्टूडेंट था। शायद यहाँ का ही जो अनुशासन और डिसिप्लिन था कि मैं आज यहाँ पे हूँ आप सबके बीच में। जैसे कि अभी जो बच्चों ने जो प्रोग्राम जो अभी एक करके दिखाया, जो ड्रामा करके दिखाया, आप सबको पता है किस बाजू में था। जो घटना अभी बंगाल में हुई थी, वो घटना वैसे घटना पहले भी हो चुकी है। जैसे दिल्ली में हुई थी 2016 में, बहुत घटनाएं ऐसी हो चुकी है। लेकिन जो अभी रिसेंट घटना हमने देखी थी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं। इसमें जब समाज में जब लोग सोच रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सो मोटो एक्शन लिया था कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर इस केस में जो भी केस को आगे बढ़ाया। इस विद्यालय की प्राचार्य महोदय, आचार्य दीदी, भाई बहनों और बाहर से बुला रहे डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज भी आप लोगों ने नशा मुक्ति या मानसिक रोग के संबंध में बहुत कुछ सुना। शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि इतना सब सुनने के बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इस बात की थी कि जैसे वहां बैनर पर लिखा हुआ, आप देखिए क्या लिखा है, जागरूकता कार्यक्रम। किसी भी कार्यक्रम के संबंध में, किसी भी मिशन के संबंध में, किसी भी कार्यक्रम के संबंध में पहले हमें उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तभी तो हम समझ पाएंगे कि आखिर वो कार्यक्रम क्या है। नशा मुक्ति तो करना है, ये बात सही है, लेकिन नशा मुक्ति, नशा है क्या, ये समझाने के लिए आप लोगों के बीच में अभी डॉक्टर पाटीदार साहब ने बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में अपनी बात कही है। उसी प्रकार से कुछ मानसिक रोग भी हुआ करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, आदरणीय भाई साहब, दीदी और हमारे प्यारी दीदियाँ जो यहाँ संचालित हो रहे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे आचार्य और दीदियाँ, और मेरे प्यारे बच्चे जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रहे हैं, अपनी जगह भी बना रहे हैं और ध्यान से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
आपको जैसे कि कहा गया कि ये परिचय जो आपने पढ़ लिए हैं क्या, तुरंत पर हमारे परिचय खुल जाए। क्यों? क्या पता है किसी में से तो केस नहीं आने वाला है ना? हुआ था ऐसा? हुआ था। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि नशा नहीं करना चाहिए, पर कैसा नशा करना चाहिए? ऐसा नशा करो ना जो उतरे ही ना कभी भी, क्योंकि राष्ट्र को कैसा कैसा बनाना है। आप एक दो पंक्ति डेली दोहराते हैं इस मंदिर में, इस स्कूल में, क्या है वो? राष्ट्र धर्म करता हुए मार्ग पर निश्चित बढ़ते जाना है, अपनी भारत माता को जग सिर मोर बनाना है। और जग सिर मोर कैसे बनेगा? भारत, जब आप देशभक्ति का नशा करेंगे, वैसा नशा जो कभी भी नहीं उतरता, न दिन न रात, 24 घंटे किसी भी प्रकार में आप इस भक्ति का नशा नहीं उतार सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भक्ति का, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे भगवान से रिलेटेड भक्ति हो, चाहे आदर भाव की भक्ति हो, देश प्रेम की भक्ति हो, ऐसा नशा आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आप आने वाली युवा पीढ़ी है। और अगर आप ऐसा नशा करेंगे, जैसे IAS ऑफिसर बनता है ना, उसको किस बात का नशा रहता है? क्या करता है वो? एक ही धुन सवार रहती है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बनना है। 24 घंटे मंदिर में भी जाता है, मत्था टेकता है, कहता है भगवान मुझे मेरे कार्य में सफलता दिला। आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मुझे इस कार्य में सफल होना है। 24 घंटे ना से नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसे IAS ऑफिसर बनना है ना, इसलिए उसको नींद नहीं आती। देश प्रेम की भावना जिन शहीदों में होती है, बॉर्डर पे आपने देखे ना शहीद क्या करते, सो जाते हैं क्या? नहीं सोते। क्यों? उनको इस बात का नशा है कि आपकी सेवा में तत्पर वहां पर खड़े रहना है बॉर्डर पर, तो वो नहीं सोते हैं, इस नशे में नहीं सोते हैं। हमको किस बात का है नशा? हर दिन हर पल क्या एक्टिविटी करवानी, क्या दें हम बच्चों को, क्या ऐसा नया परोसे, क्या नवाचार करें कि ये कह दे कि नहीं हमारा स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। इस बात का नशा हमें हर शिक्षक को, शिक्षक आपके लिए पढ़ता है, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ने वाला शिक्षक नहीं होता और पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, नहीं, आप हमें पढ़ाते हैं। कैसे? अरे आपके डर से तो हम पढ़ते हैं, न जाने कौन सा क्वेश्चन पूछ लोगे आप। ऐसा होता है ना? होता है। आप कभी कभी तो परीक्षा भी लेते हो, हमारी लेते हो ना? लेते हो। ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आज दीदी से, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आज आचार्य जी से कि 2 मिनट तक तो वो भी बेटा कल पढ़ के आऊंगा, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मैं थोड़ा व्यस्त था। वो सच्चा शिक्षक होता है जो आपसे बोलने की हिम्मत रखता है कि आज मैंने पढ़ाई की। ठीक है? तो नशा देशभक्ति का होना चाहिए। ऐसा नशा किस काम का जो 2 मिनट किया और उतर गया? तो आपको पढ़ाई का नशा होना चाहिए। आज तो मुझे दीदी ने 2 चैप्टर याद करने को दिए हैं, यानी मुझे याद कर ले जाने हैं। नींद नहीं आनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए। ऐसे हमारे देश के जवान, ऐसे हमारा देश प्रेम, राष्ट्रभक्त के निर्माता, हम कहते हैं कि राष्ट्र को निर्मित करेंगे, वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो वापस से बनाना ही है। यही हमारा देश प्रेम होगा, यही हमारा नशा होगा। धन्यवाद। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ कि नशा एक सामाजिक अभिशाप है जो हमारे पारिवारिक जीवन आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास करता है। मैं शपथ लेकर ये वचन देता हूँ कि मैं कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा तथा इस पुलिस संकल्प को समाज के उन समस्त क्षेत्रों में प्रचारित एवं प्रसारित करके इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने
हेतु हर संभव प्रयास अपने दो शब्द यहाँ आकर कह सके, ऐसे बच्चे मैं पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो बच्चे आ चुके हैं, तो आप आकर नशा मुक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर रखें। एवं मेरे सहपाठी जन, आप सभी को मेरा सादर वंदे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नशा मुक्त भारत अभियान जागरूकता कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होने जाता है, तो सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हमारे मन में ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए कि हमें नशा करना है, और इसकी सारी जो है हमारे पेरेंट्स को जाती है कि वो हमें कैसी शिक्षा व संस्कार दे रहे हैं कि हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे हम हमारे परिवार को गृहस्थ कर सकते हैं, और हम देखें कि हमें कैसा फ्रेंड सर्कल बनाना है और हमें किस मोहल्ले में किस तरीके से रहना है, और हम अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें ये गलत कदम नहीं उठाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संचालक टोली को, आयोजित कर्ता को एवं आई रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम की, उन्होंने यह मैनेज किया कि हमें किस तरीके से इस सब्जेक्ट पर शिक्षा मिल सकती है कि कैसे हम ये गलत कदम ना उठाकर जो समाज में ये चीजें गृहस्थ की जा रही है उनके खिलाफ कैसे अपनी आवाज उठा सके। मेरे पास समय सीमा कम है, इसीलिए मैं यही अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।